तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दीज कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। Today we will discuss about the unit number 2, patriotism. Patriotism means hubbul watni. Now I am going to discuss about the introduction or give you introduction about this chapter. First of all, patriotism. Patriotism refers to the passionate love one has for their country. This virtue pushes to citizens of our country to work for their country selflessly and make it better. A true patriot loves his country and is ready to serve and protect it at any cost. It inspires the spirit of sacrifice, courage, and endurance among the people. Patriotism is a part of nationalism. Patriotism must come into action every day against corrupt people, exploitation, cheating on tax, and crushing the poor. He will never let down or criticize his country and will try to bring the best image of his country. In this line, we are going to discuss about the patriot, means the person who loves his country. When he comes into contact with people of other land, patriotism is very useful in the interests of the country and nation. The nation is strongly built upon the sacrifices of the patriots. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a great patriot. He gave the identity and separate homeland for the Muslims of subcontinent. There are many personalities in the history of Pakistan who laid down their lives for the defense of the country, like Major Aziz Bhatti Shaheed, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif Shaheed, etc. The highest military award Nishan-e-Haider was given to them for their sacrifice to their beloved country Pakistan. So students, this was the introduction of the chapter. Now we are going to translate the paragraphs. First paragraph is, patriotism means love for their motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर आप पैदा होते हो उससे मोहब्बत या अपने मुल्क से वफ़ादारी। एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word, means लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है patriota, which means countryman. It is considered as commendable quality. लफ्ज़ पेट्रियोट लातीनी ज़बान यानी पेट्रियोटा से माखूज़ है या उससे लिया गया है, जिसका मतलब है हम वतन। ये एक काबिल स्ताइश खूबी समझी जाती है। In this paragraph, the author tells us about the meaning and origin of the patriotism or the definition of the patriotism. There is a question in the block or patch, which one is, who offers sacrifice for the country?
सो इसका आंसर है अ पैट्रियोट सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। पूछा जा रहा है कि अपने मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है, तो पैट्रियोट जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला होता है वो कुर्बानी देता है अपने वतन के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। फर्स्ट वन इज़ पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी और सिनोनिम है इसका नेशनलिज़म। मदरलैंड मीन्स वतन, नेटिव कंट्री जहाँ पर आप रह रहे होते हो। डिवोशन लगन, मोहब्बत मीन्स लॉयल्टी। विलिंग रज़ामंद होना, ख्वाहिश रखना, एग्रीएबल। सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, ऑब्लेशन। कंसिडर ख्याल करना, समझना, थिंक अबाउट। कमेंडेबल काबिल तारीफ़ मीन्स एडमायरेबल। क्वालिटी खूबी या स्टैंडर्ड। बेटा ये तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं ये पैराग्राफ नंबर 1 के हैं। आप उनमें से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैंने उन सबको यहाँ पर लिख दिया है। आप उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, मीनिंग्स भी देख सकते हैं उर्दू में और सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ नंबर 2। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़ ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड। एक मुहिब्बुल वतन शख्स के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त वो आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब्बुल वतन इन इक़दार के बचाव के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। In this paragraph, the author trying to discuss about the importance of the patriotism for a country. He discussed that a country which has patriotic people could be developed easily because the patriotic people sacrifice their everything for their country. There are the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms of the paragraph number 2. First one is strength. Strength means ताकत, power. Second one is courage. Courage means जुर्रत, हिम्मत और bravery. Safeguard हिफाजत करना, protection. Interest मफाद, curiosity. Sovereignty खुद मुख्तारी, independence. Integrity सालमियत, unity. Compromise समझौता कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना। प्रिजर्वेशन बचाओ, कंजर्वेशन। बेटा ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये आपकी सहूलत के लिए लिखे गए हैं। अगर आपको पीछे पैराग्राफ में कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड की समझ नहीं आती तो आप इन वर्ड से कंसिडरेट करें। यहाँ से आप उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगी, मीनिंग भी और सिनोनिम भी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ नंबर 3। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और अजीम मुहिब्बुल वतन थे। मामार का मतलब होता है बेटा बनाने वाला किसी चीज़ के, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फाउंडर कहा जाता है, बानी कहा जाता है, यानी कि उसका मतलब भी बनाने वाला होता है और मामार का मतलब भी बनाने वाला होता है। वो बरे सग़ीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उनमें शनाख्त का एहसास पैदा फरमाया। He said उन्होंने कहा We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी का वो एहसास पैदा करना होगा जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में ढाल दे।
In this paragraph, the author discusses about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, his patriotism about the country, and his point of view about the patriotism. A question is given in the box, which one is, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? So the answer is given in next slide. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी शख्सियत थी बरसग़ीर की जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए जद्दोजहद की या उनको अलहदा वतन के लिए आमादा किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत थी जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए मेहनत की, मुशक्क़त की, उनको अलहदा वतन हासिल करवाने के लिए। These are the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 3. First one is nation builder, means कौम का मामार, founder. Values, इक़दार, ethics. Culture, सकाफ़त, way of life. Way of life means बेटा कि एक कौम जो होती है उसका रहन सहन कैसा होता है, वो किन असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। ट्रेडिशंस, रस्म व रिवाज, हेरिटेज, विरसा जो उनको अपने आबाओ अजदाद से मिला होता है उसके बारे में बात की जाती है ट्रेडिशंस के अंदर। आइडेंटिटी, शनाख्त, स्पेसिफिकेशन, सिक्योर, हासिल करना, ऑब्टेन, गैल्वेनाइज, ढालना, मोटिवेट करना। Now we are going to discuss about the paragraph number 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil wars, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी। यहाँ पर आगे हम डिस्कस करने लगे हैं उन इम्पोर्टेंट या मेजर लोगों के नाम या मेजर शहदा के नाम जो कि जिन्होंने जाम शहादत नोश किया इन जंगों में। फर्स्ट वन इज़ कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. कप्तान मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कप्तान कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान सब ने अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी खातिर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। All of them were awarded निशाने हैदर, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. इन तमाम को निशाने हैदर का एज़ाज़ मिला जो सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जिसे उन अज़ीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है जो मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं या जो अपने वतन के लिए अपनी जानें पेश करते हैं। Students, as you know that the freedom has a huge importance for the country. So these heroes like Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad Shaheed, Captain Rashid Minhas Shaheed, due to these patriotic persons or personalities, we live in an independent country. So we should recognize their patriotisness about their country. What is the highest military award of Pakistan? There is a question in the blog. So the answer is Nishane Haider,
is the highest military award of Pakistan. Now, difficult words, their pronunciation, meaning and synonyms of the paragraph number 4. Spirit means जज्बा, essence. Invasion हमला करना, अटैक. डिफेंस दिफा करना, प्रोटेक्शन. फाइट लड़ना, डू बैटल. ब्रेव बहादुर, करेजियस. एम्ब्रेस कबूल करना, एक्सेप्ट. मार्टरडम शहादत, डेथ. ले डाउन कुर्बान करना, टू गिव अप. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a life spirit that continues, inspires and guides a nation. हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उसकी रहनुमाई करता है. S.W. Scott, a man devoid patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम आदमी उस शख्स की मानिंद सांस लेता है जिसकी हस्ती या जिसकी ज़ात बिल्कुल बेहिस है, जिसने खुद से कभी नहीं कहा कि ये मेरी अपनी सरजमीन है. There are some difficult words and pronunciation, meaning and synonyms about the paragraph number 5. Feeling जज्बा, emotions inspire उभारना, stimulate. Devoid खाली या आरी means lacking. Soul रूह means spirit. स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म. इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियोट एंड हाउ पेट्रियोट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. In this chapter we'll discuss about that how a true patriot loves his country and is ready to serve and protect it at any cost. Students, patriotism is very helpful in the interests of the country and the nation development. The nation is strongly built up on the sacrifices of the patriotic people. Patriotism is a part of the nationalism. Without patriotism, a country does not have any nationalism or unity or faith. A patriotic person has selflessly love for their country and always trying to make it better for the development of his country. Strength, courage, sovereignty, integrity, honor, these all characteristics are developed in a nation when the nation has a lot of patriotic people or patriotism. बेटा, एक हुब्बुल वतन शख्स जो होता है वो कभी भी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और इज़्ज़त या वक़ार के ऊपर समझौता नहीं करता. वो कभी अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जिससे उसकी मुल्क की बदनामी हो, दूसरे लोगों के सामने उसके मुल्क को या कौम को शर्मिंदा होना पड़े. और वो कभी भी अपने मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ता, उसकी बचाव या हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. आप पाकिस्तानी कौम की ही मिसाल ले लें. हमारे कितने ही लोगों ने अब तक तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी. क्यों? क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ताकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा जब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए. पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, उन सब का इसमें बहुत कलीदी किरदार है कि उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी उस लेवल तक नहीं जाने दिया कि दुश्मन जो हैं वो आकर हमारे ऊपर हमला करने की जुर्रत कर सकें. पाकिस्तान का मजबूती से दिफा किया और आज
पाकिस्तान का दिफा जो है वो मज़बूत है, यानी कि किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो आकर, किसी गैर मुल्की की ज़रूरत नहीं कि वो आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचे। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब एक मुल्क के अंदर हुब्बुल वतन लोग मौजूद हों, जब लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो अपने मुल्क को लेकर कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बेटा, आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।